Hello children, welcome to your EVS video class. Children, I wish you all a very happy and prosperous new year. May this year brings lots of joy and happiness in your life. Last year you could not go to school, due to COVID-19. But we pray to Almighty that this year the school reopens and you can again go to school, you can enjoy your school days. But till then, we have to continue with our online classes and video classes. Children, though the schools are not open, but your studies were going on through this only. This study on video classes or online classes cannot be compared with the regular school, but we have no options, so we'll continue with online classes only and video classes, of course. You know that in my previous video I have started chapter 11. So in today's video I will continue with the same chapter. I will continue, but let's revise what we studied in the previous video. अपने पिछले वीडियो में हमने क्या स्टार्ट किया था, क्या मैंने आपको समझाया था, that I will revise once. Children, the topic is means of transportation. I have explained you what is the meaning of means of transportation. Transportation is movement from one place to another. That is transportation. Going from one place to another is transportation or transport. And the medium through which we move from one place to another is called means of transport. The vehicles that we use from moving from one place to another place, that is called means of transport. Children, we discussed in my previous video that we travel every day, almost every day. I'm not talking about this period of COVID-19. Last year was an exception. वो एक exceptional year में हम मान सकते हैं कि lockdown था, people were not coming out of their houses and due to COVID-19. But generally, we travel every day. Children, they travel to school, they go to school, they come from school. The elders in the family, the adults, they go to their office, to their colleges. The ladies have to go out for shopping or for their daily household work. So we travel every day. And there are various reasons. Of course, there are various reasons for traveling. Because when we travel, some places are near to our home and some places are far from our home. कुछ जगह जो होते हैं वो हमारे घर के पास होते हैं और कुछ places जो हमारे घर से दूर होते हैं. The places that are near to our house, there we can go just by walking. पैदल चल के भी जा सकते हैं. But the places that are far from our home, we need some means, some vehicle to move to that place, to go to that place. That vehicle, that means that we use is called means of transportation. In my previous video, we discussed why do we travel. इस पे भी हमने बात किया था कि हम travel करते क्यों हैं, है ना. कुछ हमने points discuss किए थे कि हम क्यों travel करते हैं. तो एक बार उसको revise कर लेते हैं कि हम travel क्यों करते हैं. पहला तो वर्क प्लेस पे जाने के लिए we travel to go to our workplace, a place of work, you can say. I'm talking about elders, not you. You go to school, but the elders in the family, they go to their place of work. Then a second reason that we travel is go to market to buy things. बाजार जाना है, कुछ सामान लेकर आना है, तो we go to market to buy things. Then we may go to other places, to our neighborhood.
बैंक जाना है, पोस्ट ऑफिस जाना है, हॉस्पिटल फॉर सम रीजन, तो नेबरहुड में जो प्लेसेस होते हैं देयर ऑल्सो वी गो. देन पीपल गो टू देयर फ्रेंड्स और रिलेटिव्स होम, उनसे अपने फ्रेंड से मिलने, अपने रिलेटिव से मिलने भी जाते हैं. वी ट्रेवल फॉर दैट ऑल्सो. Then people travel to far off places during their holidays. Again I'm talking about in general term. हम पिछले साल को नहीं काउंट कर रहे हैं कि हॉलीडेज में कहीं बाहर जाएं, because last year was an exceptional year. But generally people go to far off places during their holidays. Then we also travel for various religious and social activities. कभी टेम्पल जाना है, कोई रिलीजियस सेरेमनी है, कोई सोशल एक्टिविटीज है, वेडिंग, एनिवर्सरीज, एनी सोशल रीजन. एंड फाइनली वी ट्रेवल फॉर प्लेजर. किसी किसी को ट्रेवल करना अच्छा लगता है, लॉन्ग ड्राइव पे जाना अच्छा लगता है, घूमना अच्छा लगता है. ट्रेवलिंग इज देयर हॉबी. तो for pleasure also people travel. So there are many reasons that people travel, whether near places or to the far off places. Then we discussed about means of transportation. में हमने बात किया था कि जो भी vehicles हैं that are used to transport people and good from one place to another, that is means of transport, isn't it? The vehicles that are used to transport people and goods from one place to another are means of transport. Goods means items, objects, सामान जिसको बोलते हैं. तो the vehicles that are used to transport मैंने बताया था, to put something from one place to another, to take something or someone from one place to another, that is transport. So the vehicles that are used to transport people and goods from one place to another place are means of transport. And there are three types of means of transport. That also I have told you, that is land transport, then water transport, air transport, now this one is road and rail. इसमें दोनों आ जाता है, road and rail. ये दोनों लैंड ट्रांसपोर्ट में ही आ जाते हैं. जो रेल पे चलने वाली, जो ट्रैक्स पे चलने वाली जो चीजें होती हैं, ट्रैक वाली, एंड ऑफ कोर्स रोड ट्रांसपोर्ट. तो ये है 3 टाइप्स ऑफ means of transportation of 3 different types. We will start with land transport. Today we are going to discuss first which is land transport. Now land, the word land gives you the idea that the transports, the vehicles that move on land, the vehicles, the transports that move on land are land transport. Okay, जो भी vehicles होते हैं, जो transport के means of transport हैं, जो land पर move करते हैं, they come under this category. Okay, they are called means of land transport. Now almost जितनी भी हम जनरली जो भी हम व्हीकल्स यूज करते हैं, वट एवर व्हीकल वी यूज इन आवर डेली लाइफ, दे आर मोस्टली लैंड ट्रांसपोर्ट. जो हम जनरली अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं फॉर गोइंग टू ऑफिस, फॉर गोइंग टू स्कूल, फॉर गोइंग टू to a neighborhood place or to a friend's house, generally we use land transport. जो रोड पर व्हीकल्स मूव करती हैं, जनरली वी यूज लैंड ट्रांसपोर्ट ओनली. नाउ as I told you
the meaning of land transport is the transport that moves on land, the vehicles which moves on land. The vehicles that move on land are called land transport. Okay, the vehicles that move on land are called land transport. Now, think of the vehicles that we daily use. आप स्कूल जब जाते थे, I'm using थे because अभी तो आप स्कूल नहीं जा रहे हो, but generally when you go to school you use either bus, school bus, auto rickshaw, or motorbike of your parent, or car, or van, or scooter, scooty, etc. तो जो भी मैंने अभी व्हीकल्स के नाम लिए, ये सारे कहाँ चलते हैं? They move on road. Yes, all these vehicles move on road. So all these vehicles are called land transport. These are examples of land transport. We have a wide range of land transport. आप अभी जैसे ही आप सोचोगे किसी भी व्हीकल के बारे में, तो सबसे पहले आपके दिमाग में लैंड जो ट्रांसपोर्ट है वही आएगा. कार, बस, ट्रेन भी लैंड ट्रांसपोर्ट है, दो इट मूव्स ऑन ट्रैक. ट्रेन जो है वो रोड पर नहीं चलती है पर ट्रैक पर चलती है. वो ट्रैक तो लेकिन जमीन पे लैंड पर बनाया जाता है. तो दैट द व्हीकल्स दैट मूव ऑन ट्रैक ऑल्सो, दे ऑल्सो कम अंडर दिस कैटेगरी. लैंड ट्रांसपोर्ट के अंदर ही वो आता है. तो ट्रेन जो है वो भी लैंड ट्रांसपोर्ट ही है. तो हमने देखा बस, कार, स्कूटर, ट्रक, जीप, ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा, ट्राइसाइकिल जो रिक्शा है, देन बाइक, बाइसिकल. ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट. और ये सबसे ज्यादा यूज होता है. लैंड ट्रांसपोर्ट इज मैक्सिमम इन यूज. जो ट्रक्स होते हैं वो यूज होते हैं गुड्स को ट्रांसपोर्टेशन करने में. बेसिकली पैसेंजर के लिए कम यूज होता है, बट इट इज जनरली यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स. जो सामान, भारी सामान होता है वो ट्रक्स से ही आता है. जो भी आपके शहर में वेजिटेबल्स आते हैं या फ्रूट्स आते हैं या और भी जितना सामान आता है, ग्रेन्स वगैरह, वो सब ट्रक के थ्रू ही आते हैं. ट्रक्स आर जनरली यूज्ड फॉर कैरिंग गुड्स. पैसेंजर के लिए कम यूज होता है, बट पैसेंजर के लिए वी हैव अदर मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट लाइक ट्रेन, बस, कार, एक्सेट्रा. ऑल दीज आर means of land transport for passengers. Though buses are also used, trains are also used for carrying goods. Goods train अलग से होती है जिसमें कि सामान ट्रांसपोर्ट किया जाता है. Goods trains are also there. बसेस में भी आपने देखा होगा बस के ऊपर काफी सारा सामान रहता है. So buses are also used for transportation of goods. There are separate trains. They are called goods train for carrying, for transportation of goods, and passenger trains are different from goods train. If you see around, if you notice around your surrounding, आप अपने surrounding में देखेंगे तो you will find land transport everywhere. अब घर से बाहर निकलोगे ही, निकलते ही आपको जो भी ट्रांसपोर्ट दिखेगा, all that is means of land transport only. अब जो भी साइकिल देखेंगे, रिक्शा देखेंगे, ई रिक्शा देखेंगे, वो सब लैंड ट्रांसपोर्ट का ही
पार्ट है। ये जितने भी मैंने अभी आपको लैंड ट्रांसपोर्ट बताइए तो हमारे आज की डेट में यूज होते ही हैं। जो पहले जमाने में ओल्डन डेज में जो यूज होते थे वो भी लैंड ट्रांसपोर्ट, उसमें भी लैंड ट्रांसपोर्ट थे। अगर आप बुल्लक कार्ट देखते हैं या कैमल कार्ट देखते हैं, मतलब अगर एनिमल्स एज ए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अगर हम देखें, तो आप नोट करेंगे कि जो एनिमल्स एज ए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हम यूज करते अभी भी आपको दिखेगा, पर मैक्सिमम ये यूजेस पहले जमाने में ज्यादा होते थे, ओल्डन पीरियड्स में ज्यादा यूज होता था एनिमल एज ए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। हॉर्स कार्ट है, कैमल कार्ट है, जिसको हॉर्स कार्ट होता है ना, टांगा जिसको बोलते हैं, घोड़ा गाड़ी बोलते हैं, तो हॉर्स कार्ट, कैमल कार्ट, देन बुल्लक कार्ट, ये जितने भी कार्ट्स हैं ये सारे जो हैं भले ही दे आर ड्रिवन बाय एनिमल्स, उनको एनिमल चलाते हैं, एनिमल खींचते हैं, बट दे मूव ऑन लैंड, वो जमीन पे ही चलते हैं, लैंड में ही चलते हैं। तो दैट्स व्हाई दे ऑल्सो कम अंडर दिस कैटेगरी ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। बुल्लक कार्ट, कैमल कार्ट, हॉर्स कैरेज जो होता है वो सारे लैंड ट्रांसपोर्ट के अंदर ही आते हैं। आप अभी भी जब आप किसी विलेज में जाओगे वहां पे आप देखोगे बुल्लक कार्ट्स यूज होते हैं। राजस्थान के विलेजेस में जाओगे तो वहां कैमल कार्ट्स यूज होते हैं, कैमल्स भी यूज होते हैं, कैमल कार्ट्स भी यूज होते हैं, हॉर्सेस भी यूज होते हैं, हॉर्स कार्ट जो हॉर्स कैरेज होता है वो भी यूज होता है, बुल्लक्स भी यूज होते हैं, बुल्लक कार्ट्स भी यूज होते हैं। तो डायरेक्टली एनिमल्स को भी यूज किया जाता है एज ए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, एंड उनके साथ कार्ट को लगा के जो गाड़ी लगाई जाती है वैसे भी यूज किया जाता है। एट सम प्लेसेस एलिफेंट्स आर यूज एज ए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जंगलों में तो जो बिल्कुल ऐसे डेंस फॉरेस्ट होते हैं, घने जंगल जहां होते हैं, जहां व्हीकल्स जा ही नहीं सकते हैं, वहां पे एलिफेंट्स को यूज किया जाता है जंगलों के लिए। दे आर यूज्ड एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन फॉरेस्ट। एनिमल्स में एलिफेंट को यूज किया जाता है। डोंकीज आर यूज्ड फॉर कैरिंग हैवी लोड्स, डोंकीज को भी यूज किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। बट दे ऑल दीज एनिमल्स which are used as means of transport, they come under the category of land transport, क्योंकि वो मूव तो लैंड पर ही करते हैं। तो इसीलिए ये सारे जो एनिमल्स हैं which are used as means of transport, they are actually coming under, they all actually come under means of land transport। और ऐसा नहीं है कि ये व्हीकल्स पुराने जमाने में ही सिर्फ यूज होते थे, आज भी आप देखोगे तो स्पेशली विलेजेस में यू विल फाइंड बुल्लक कार्ट्स, कैमल कार्ट्स, ये आपको अभी भी देखने को मिलेगा। एंड इन द एरिया वेयर देयर इज डेंस फॉरेस्ट, एलिफेंट्स आर यूज्ड फॉर ट्रेवलिंग एंड ऑल्सो फॉर कैरिंग गुड्स। डोंकीज तो आप शहर में भी देखते होंगे, किसी का घर वगैरह बन रहा होता तो ब्रिक्स वगैरह जो कैरी करने का काम हो ना, वो डोंकी पे लोग अक्सर करते हैं। ट्रैक्टर भी यूज होता है, ट्रैक्टर पे सैंड आता है, ब्रिक्स आते हैं, पर मैक्सिमम जगह पे म्यूल्स भी यूज होते हैं। तो एनिमल्स आर ऑल्सो यूज एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। वो हम उन सबको लैंड ट्रांसपोर्ट की कैटेगरी में यूज करते हैं, एंड दे आर स्टिल यूज्ड एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन विलेजेस। तो इसमें हम जैसे मैंने नाम लिख लेते हैं, हॉर्सेस हैं, कैमल, बुल्लक, डोंकी, म्यूल, खच्चर जिसको बोलते हैं, म्यूल, एलिफेंट। तो ये एनिमल्स डायरेक्टली भी यूज होते हैं और कार्ट के साथ भी यूज होते हैं। ठीक है, ये दीज एनिमल्स आर ईदर यूज डायरेक्टली फॉर एज ए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और यूज्ड विथ अलोंग विथ द कार्ट। तो अब बात करते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट में एक
मेट्रो जो अभी सबसे जो लेटेस्ट जो अभी हमारा है, मेट्रो की बात करते हैं। मेट्रो रेल जो ट्रांसपोर्ट होता है, क्योंकि हम लैंड ट्रांसपोर्ट की ही बात कर रहे हैं तो हम मेट्रो की भी बात कर लेते हैं। इसको मैं इरेज कर देती हूँ। मेट्रो रेल सिस्टम तो ये जो मेट्रो रेल सिस्टम है दिल्ली में ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड है, कोलकाता में है, और ये अभी जो है सबसे जो लेटेस्ट जो है ना मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। एंड इसका बेस्ट इट हैज इसका क्या बेसिक फायदा हुआ है, it has eased traffic congestion. ये जो वर्ड मैंने यूज किया है कंजेशन, ट्रैफिक कंजेशन मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो जाना, क्राउड इकट्ठा हो जाना रोड पर, जो हम बोलते हैं ट्रैफिक जैम जो हम यूज करते हैं वर्ड कि आज बहुत जैम है, ट्रैफिक जैम है, तो कंजेशन हम यूज करते हैं कि जब बहुत ही क्राउड हो और बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो, फुल ऑफ ट्रैफिक एंड वेरी क्राउडेड, when the roads are very crowded and full of traffic, that is called congestion, traffic congestion. तो ये जो मेट्रो जो रेल सिस्टम है इसने काफी हद तक इट हैज ईज्ड द ट्रैफिक कंजेशन, जो रोड्स पर जाम लग जाता है, जो ओवर क्राउडिंग हो जाती है रोड पर, उसमें काफी इससे रिलीफ मिला है। इट हैज ईज्ड द ट्रैफिक कंजेशन, दिस मेट्रो रेल सिस्टम, स्पेशली इन मेट्रो सिटीज, स्पेशली इन मेट्रो सिटीज मतलब जो मेट्रोपॉलिटन सिटी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं महानगर, नगर और महानगर, मेट्रोपॉलिटन सिटीज, बड़े बड़े जो शहर हैं जहां पर ऑलमोस्ट एवरीबडी यूजेस व्हीकल, जो इंजन वाले जो व्हीकल्स होते हैं, नॉट एनिमल ट्रांसपोर्ट, जहां बड़े शहरों में ऑलमोस्ट एवरीबडी हैज देयर ओन व्हीकल, हर किसी के पास अपना व्हीकल है, कार ऑलमोस्ट सबके पास है, और फॉरगेट अबाउट टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर ऑलमोस्ट एवरीबडी हैज गॉट अ फोर व्हीलर। तो ऐसे में क्या होता है कि बहुत ट्रैफिक कंजेशन हो जाता है। इवन जो बाइक्स से हैं, मतलब या स्कूटर से हैं, वो ऐसे लोगों की तो कमी नहीं है। तो बड़े शहरों में क्या होता है कि एक तो सबके पास व्हीकल है, लोग भी ज्यादा हैं, पैदल चलने वाले लोग भी ज्यादा हैं, तो बहुत ट्रैफिक हो जाता है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो जाता है, एंड पीपल हैव टू वेट फॉर आवर्स इन द ट्रैफिक। कभी कभी इतना जाम लगता है कि घंटों घंटों गाड़ियां रुकी रहती हैं बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक जैम। कभी कभी कई किलोमीटर्स का जाम लग जाता है, यस, किलोमीटर्स में भी जाम लगता है। तो ऐसे में ये जो मेट्रो जो रेल है, इट हैज ईज्ड दिस प्रॉब्लम। इससे क्या हो गया कि बहुत सारे लोग अब जो है जो अदरवाइज बसेस यूज करते थे या बाइक यूज करते थे या पैदल ही जाते थे, कभी कभी ऑटो यूज करते थे, नाउ दे हैव स्टार्टेड यूजिंग दिस मेट्रो सिस्टम। तो इसका जो ट्रैक्स बना दिए गए तो रोड जो है वो फ्री हो गया, इनके ट्रैक बनने से जो है वो रोड फ्री हो गए, और जो ट्रैफिक जैम है उससे काफी हद तक रिलीफ मिला बड़े शहरों में, स्पेशली बड़े शहरों की बात हो रही है। और कोलकाता में तो बहुत पहले से ही ट्राम चलती थी, वो भी ट्रैक पे चलती है। ट्राम जो है ये कलकत्ता में इवन बिफोर द इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस तब से वहां पर ट्राम्स चलती हैं। अभी ट्राम्स क्या होते हैं, ट्राम्स आर लाइक बिग बसेस, वो एक बसेस की तरह होती हैं जो ट्रैक पर चलती हैं।
and those tracks are on the road. Yes, those tracks are on the road. रोड के ऊपर ही वो ट्रैक्स बने होते हैं और उसके ऊपर वो बसेस मूव करती हैं. दे आर कॉल्ड ट्रैम. तो वो एक डिफरेंट थी कि वो भी ट्रैक पे चलने वाला व्हीकल है. बस होती है विच मूव्स ऑन ट्रैक, उसको ट्रैम बोलते हैं. और ये कोलकाता में ही, सिर्फ इंडिया में सिर्फ कोलकाता में ही आपको ट्रैम देखने को मिलेगा. नोवेयर एल्स. इफ यू वांट टू सी अ ट्रैम स्टिल देयर, तो यू हैव टू गो टू कोलकाता. उसके अलावा मेट्रो तो है ही है. उसके बाद जो हम ट्रेन की बात करते हैं, जो है वो जो ट्रेन जो है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है ट्रेन, क्योंकि मिलियंस ऑफ पीपल यूज दिस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डेली फॉर ट्रांसपोर्टेशन. अब मैंने जैसा कि बताया कि मैं ये लास्ट ईयर की बात नहीं कर रहे हैं, हम जनरली डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए जो हम ट्रेन को इग्नोर नहीं कर सकते. ये सबसे इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है विद रिस्पेक्ट टू आवर कंट्री. हमारे देश को अगर देखा जाए, हमारे देश के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेन्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, बिकॉज thousands and thousands of people, or I would say lakhs of people, use train as means of transport from moving from one place to another, and that too daily. इतने लोग जो है ट्रेन को यूज करते हैं फॉर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. एंड जो मुंबई जैसे शहर है या चेन्नई जैसा शहर है, वहां पर तो लोकल ट्रेन्स चलती हैं. यू हैव हर्ड दिस वर्ड, लोकल ट्रेन. मतलब वो सिर्फ मुंबई के अंदर ही चलती हैं. जो चेन्नई है वहां भी लोकल ट्रेन्स चलती हैं, तो वो चेन्नई के अंदर ही चलती हैं. और इन लोकल ट्रेन्स के लिए भी स्टेशंस बने हुए हैं, जैसे बाकी ट्रेन्स के स्टेशंस होते हैं. एक शहर से दूसरे शहर, एक सिटी से दूसरे सिटी जाने के लिए जो ट्रेन्स हैं, एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए जो ट्रेन्स हैं, तो स्टेशंस बने होते हैं. तो वैसे ही लोकल ट्रेन्स के लिए भी स्टेशंस बने होते हैं. ये लोकल ट्रेन्स जैसा मैंने बताया मुंबई में चलते हैं, चेन्नई में चलते हैं. मुंबई में तो इसे लाइफ लाइन ऑफ मुंबई बोला जाता है. लोकल ट्रेन्स आर कॉल्ड लाइफ लाइन ऑफ मुंबई. विद इन मुंबई चलते हैं, एंड almost 60-70% of the people of Mumbai, they use local train for traveling from one place to another. ऑफिस जाने के लिए ज्यादातर लोग वहां पर लोकल ट्रेन्स का ही यूज करते हैं. एंड इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन मुंबई एंड चेन्नई, लोकल ट्रेन्स. आपने फिल्मों में देखा होगा, कुछ लोगों ने हो सकता है सामने से भी देखा होगा, कुछ लोग शायद उसमें बैठे भी होंगे. लोकल ट्रेन्स में बहुत भीड़ होती है, इट्स वेरी क्राउडेड, बट इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर द पीपल ऑफ मुंबई एंड चेन्नई. और जो हम जनरली जो ट्रेन की बात कर रहे हैं, पैसेंजर ट्रेन एंड गुड ट्रेन. पैसेंजर ट्रेन तो जैसा मैंने आपको बताया कि lakhs of people, they use this as means of transport. and goods जो कैरी किया जाता है, जो गुड्स ट्रेन जो होती हैं, they are equally important. जो एक शहर से दूसरे शहर सामान जाता है, उसकी में इनका सबसे इम्पोर्टेंट रोल है गुड्स ट्रेन का. तो मतलब आप जो हमारे जो इंडियन रेलवे है, मतलब ये वर्ल्ड में इसका 4th लार्जेस्ट पोजीशन है. और इंडियन रेलवे सिस्टम हैज 4th लार्जेस्ट पोजीशन इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ दिस ट्रांसपोर्टेशन में. और जैसा मैंने आपको बताया कि इसके बिना हमारे कितने काम रुक जाते हैं. जैसे कि अभी आपने देखा होगा ट्रेन्स बंद थी तो कितनी परेशानी हुई, कितने लोगों को कितनी परेशानी हुई. गुड्स ट्रेन जो है वो अगर ना हो तो एक शहर से दूसरे शहर सामान ले जाना कितना मुश्किल हो जाता है. और रेलवे स्टेशन का जो पूरा सिस्टम है, दैट ऑल्सो आई वुड लाइक टू डिस्कस विद यू. किस तरह से लोग टिकट लेते हैं, किस तरह से होता है, दैट आई वुड लाइक टू डिस्कस विद यू. पर आज के इसमें नहीं करेंगे. थोड़ा सा ट्रेन, क्योंकि ट्रेन से आप सबने जरूर ट्रेवल किया है, किया होगा.
वन और द अदर टाइम। एक ना एक बार सबने ट्रेन से जर्नी की है तो आपको पता है कि टिकट लेना पड़ता है और फिर इसमें रिजर्वेशन का भी सिस्टम होता है। नॉट इन ऑल द ट्रेन्स, पर ट्रेन्स में अलग अलग कंपार्टमेंट होते हैं, बोगीज लगी होती है, उसमें सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट होता है, एसी का होता है। उसके बाद जनरल एक बोगी भी होती है जिसमें कि रिजर्वेशन नहीं होता है, बट टिकट इज कंपल्सरी, टिकट लेकर ही जाना होता है ट्रेन में। तो ये सारा जो चीज है इसको हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और जो ट्रेन से जो ट्रेवल करने की बात है इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, बट नॉट इन टूडेज वीडियो। आज की वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं और ये हम कंटिन्यू रखेंगे और साथ में हम बात करेंगे वाटर ट्रांसपोर्ट की, विच इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो इसके बारे में भी बात करेंगे, बट इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।